Hello everyone and welcome to Lockdown Learner. Today we are having Prasad Malunchkar who is currently working in Tech Mahindra as an associate software engineer. Learn live with India's best educators on Unacademy Plus. Get a subscription using my referral code Raj Kapashir and get 10% off. https://unacademy.com/plus. Nasik. Currently, I'm working in a Tech Mahindra as an associate software engineer. I completed my bachelor's degree from Pravara Rural Engineering College, Loni, which is affiliated to University of Pune. I completed my diploma and degree. Both are in mechanical engineering. Okay. So Prasad, we are like you were from mechanical branch and currently you're working as associate software engineer. So you have totally switched your career like mechanical and you are into now CSC. Like you have done mechanical, you have done your graduation from mechanical and now you're working as a CSC guy. So how you have seen, like how you come to know, like you have an interest in this part or like why you have switched your career? Okay. Actually, I'm not switching my career in a pure IT domain. I just working on a functionals of IT, which is the plant maintenance function. I just making some uh, between the bridge in between the technical team and the end user team. So it's not any difficult for me Only name to is associate software being a engineer bridge. and the work is not like fully that of the software engineer, right? Yes, yes, yes. Okay. So on which technology currently you're working? I'm working on SAP. Okay. So would you like to tell something about SAP? Like what is SAP? SAP is one of the ERP software by which the total this plant setup or the total company setup, which will be interlinked with different types of modules, just like the production planning, plant maintenance, material management, sales and distribution, finance and controlling, sales and distribution तो हो गया और तो वेयर हाउस मैनेजमेंट है Okay. ऐसे बहुत बेसिकली सारे ये टूल मॉड्यूल्स हैं मैनेजमेंट का तो है लाइक एसएपी इज ऑफ अ, मैनेजमेंट ओनली लाइक अभी आपने जो बोला उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि ये मैनेजमेंट का है सो mm, आई एम करेक्ट और नॉट लाइक इट्स फॉर मैनेजमेंट एसएपी फॉर मैनेजमेंट टूल यस एक्चुअली ईआरपी का काम ही वही रहता है ना मैनेजमेंट अच्छे से पुटअप करना पेपरलेस बनाना जो सिस्टम है अपना जो ऑन पेपर सिस्टम रहता है उसको पेपरलेस करना वही ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन बोल सकते हैं उसको अभी हमारा आईटी कंपनी भी अलग अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके ईआरपी इम्प्लीमेंट किए हैं ना ओके सो हाउ यू हैव अप्लाइड इन टेक महिंद्रा इफ इट वाज अ कैंपस प्लेसमेंट और यू हैव अप्लाइड फ्रॉम एक्सटर्नल साइड और देयर वाज रेफरेंस No, actually, I just raised my profile on Naukri.com. Uh, the HR recruiter of Tech Mahindra contacted me by viewing my profile on Naukri.com. So they just contacted me and scheduled my interview, and the process gets ahead. ओके लाइक फ्रॉम नौकरी डॉट कॉम यू गेट लाइक काफ़ी लोग तो सोचते हैं कि नौकरी डॉट कॉम और लिंक्डइन से हमें जॉब्स नहीं मिलती इतनी आसानी से बट यू गेट लाइक यू वांट टू टेल योर एक्सपीरियंस लाइक आपने काफ़ी जगह अप्लाई किया था और लाइक रिक्रूटर ने ही आपको शॉर्टलिस्ट किया था नहीं एक्चुअली रिक्रूटर ने मुझे शॉर्टलिस्ट किया था सीधा मुझे कॉल आ गया और कॉल के बाद में उसने इंटरव्यू शेड्यूल कर दिए मेरे ओके हम ऐसे अभी बहुत से लोग हैं जो ऐसे बात करते हैं कि Naukri.com से या फिर लिंक्डइन से जॉब लगती नहीं लेकिन ऐसी तो बात नहीं है Naukri.com से और लिंक्डइन से भी जॉब लगती है इसके लिए सिर्फ आपको भी कुछ स्टेप्स अहेड करना पड़ता है जैसे कि आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल है वो अच्छे से सेटअप करना पड़ता है Naukri.com का प्रोफाइल है वो भी अच्छे से सेटअप करना पड़ता है जैसे कि हम लिंक्डइन के भी बोल सकते हैं कि आपके जो कनेक्शंस आपके जो एक्सपीरियंस है या फिर आपका जो डोमेन है वो डोमेन के रिलेटेड कनेक्शंस आपके होने चाहिए अगर आपको जॉब ढूंढनी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में और आपके टोटल कनेक्शन से वो आईटीज के हैं वो तो आपको हेल्प नहीं करेंगे या सो हाउ मेनी राउंड्स वर देयर इन टेक महिंद्रा एंड हाउ मच टाइम देर ईच आर राउंड थ्री टुक ओके देर आर थ्री राउंड्स इन टेक महिंद्रा इंटरव्यूज each round takes almost 30 to 35 minutes average ओके सो इट वाज टेक्निकल राउंड बिहेवियरल राउंड मैनेजरियल राउंड
Like what kind of rounds were there? No, actually, first round is a technical round. Afterwards, one manager round, and afterwards, HR round will be there. Okay, so technical round is on coding or something else? No, it is totally based on the functionalities of SAP PM. Okay, and the managerial round, like what kind of questions they have asked in managerial round? The manager round, they just ask some location related questions Okay, and the project related questions, the project related suggestions, and that's all. okay. Which was the hardest question in your entire interview? Like which you are unable to answer or which you Huh, are getting confused? okay. Actually, there are some two, three questions which is asked by in technical round, which might be on customizations and configuration tools, uh, which is I'm not confident on my answers against these questions. So I feel that's quite difficult to. So you have left unanswered that question or like you have answered something on the basis of the name of that topic? I just trying to give the answer in the broken word, but the interviewer gave me some hints related to that topic. So I I was able to give answer in that broken way. Okay, so interviewer was friendly, like if you are stuck anywhere, they were helping, right? Yes, Okay, so out of 10, how much you want to give to Tech Mahindra in case of learning? Be truthful, like you I can will be give 5 marks. honest. 5 marks, okay, Yes, that's fine. And out of yeah, 10, how much do yes. you want to give to Tech Mahindra in case of work-life balance? Mm, I gave 10 out of 6. Okay, so on what technologies you have worked in Tech Mahindra other than SAP? No, just I'm working on SAP only. Okay, if third or a fourth year student is preparing for Tech Mahindra, so there is any suggestion from your side, like how he or she should prepare for this particular domain or for the Tech Mahindra placement? जस्ट वन पार्ट पहले तो जो अपने स्टूडेंट्स है उन लोगों ने पहले तो फिक्स करना चाहिए कि हमें कौन से इसमें करियर करना है टेक्निकल में करियर करना है या फिर फंक्शनलिटीज पे करियर करना है अगर फंक्शनलिटीज में करियर करना है तो एक तो कोर्सेज करने चाहिए जैसे पाइथन है डाटा साइंस है मशीन लर्निंग है एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो एक तो ऑप्शन है कोर्सेज का जो कि पेड कोर्सेज कहीं भी अवेलेबल है सेकंड थिंग अगर कोर्सेज करने के लिए आपको फंड्स की कमी है तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको फ्री में पढ़ाते हैं और Like our इससे भी अच्छा lockdown है कि learner. आप यूडेमी है हाँ लाइक लॉकडाउन लर्नर Yeah. बाकी तो यूडेमी जैसे साइट्स है तो वो भी आपको अच्छे से कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं विच इज नॉमिनल चार्जेस सो आप उससे भी सीख सकते हो ये तो रही टेक्निकल की बात और सेकंड थिंग अगर आपको फंक्शनलिटीज पे काम करना है तो फंक्शनलिटीज में आप तो आपका बीटेक होने के बाद आपको एक तो किसी मॉड्यूल में सर्टिफिकेशन करना ये तो एक बात एक वे हुआ दूसरा वे यह है कि हम लोग आप लोग कभी किसी डोमेन में भी जॉब ज्वाइन करके वहां पे एंड यूजर का एक्सपीरियंस लेके उसके बाद में फिर आईटी में स्विच कर सकते हो 1-2 साल का एंड यूजर का एक्सपीरियंस लेके ये भी सेकंड ऑप्शन है दैट्स ऑल Okay. You do coding also? C++, Java, like. नो Okay. नो आई So एम you're नॉट डूइंग planning एनी to start? कोडिंग yes I am planning to start but it's not Okay. doing now So any question for us? यस एक्चुअली मैंने बहुत सारे चैनल्स देखता हूँ बहुत सारे वीडियोस भी देखता हूँ कि उसमें जैसे बताया जाता है कि ये कंपनी में ज्वाइन किया तो ऐसी वर्क लाइफ होती है ऐसे इतना सैलरी होता है वो होता है वो होता है तो इसके बाद इसके बेसिस पे जो अपने जो छोटे भाई बहन हैं वो लोग अलग ही ड्रीम में चले जाते हैं कि ऐसा ही होता है हम लोग बीटेक पास किए तो ये कंपनी ज्वाइन करेंगे तो हमारा लाइफ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा हम इतना 5 डिजिट 6 डिजिट सैलरी लेंगे तो आ,
ये पूरा उनका इमेज ही गलत हो जाता है, जो कि मार्केट का जो हालत है वो तो काफी डिफरेंट रहता है। तो आप जो अभी कर रहे हो ना, कि रियल लाइफ में जो टेक महिंद्रा में काम कर रहे हो या फिर कॉग्निजेंट में या फिर अलग दूसरे कौन सी कंपनी में काम कर रहा हो, तो वो कंपनी में काम करने वाले को कैसा गया एक्चुअली, वो कंपनी में उसका ब्रीच क्या था, यूनिवर्सिटी से लेके कंपनी तक का। तो वो जो आप रियल लाइफ में एग्जाम्पल अपने छोटे भाई बहन को दिखा रहे हो, वो काफी अच्छा है। ये आपको आइडिया कहाँ से मिला एक्चुअली? इस केस में मैं अपना एग्जांपल लूंगा, लाइक व्हेन आई वाज इन थर्ड, या टेक एग्जांपल सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर, सो मेरे पास गाइडेंस बिल्कुल भी नहीं थी। लाइक हमारे सीनियर से इतनी इंटरेक्शन हो नहीं पाती कि हम किसी को भी पकड़ें कि भैया दीदी हमें बता दो कि कंपनीज कैसे आती हैं, क्या पता सामने वाला बंदा इंटरेक्ट करना ना चाहता हो। सो काफ़ी जगह हमने सर्च भी किया कि ये कहाँ से पता लगेगा कि कंपनीज क्वेश्चन कैसे पूछती हैं, क्या होता है। कोई भी प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिला, ओनली गीक फॉर गीक से वो बता देगा बस क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछते हैं। अब उसके बाद हमें कंपनी का रिव्यू भी जानना होता है, कंपनी बेसिकली किस चीज़ पे वर्क करती है, एक्चुअल वर्क लाइफ बैलेंस क्या है। ग्लास डोर पे क्या होगा, कंपनी क्या कराएगी कि अपने एम्प्लॉयज से कह देगी कि 5 5 स्टार दे दो, कोई भी कंपनी कह सकती है, तो एम्प्लॉयज दे देंगे 5 स्टार। तो एक्चुअल जो चीज़ है वो हमारे सामने नहीं आ पाई। तो बेटर है कि अगर हम इंटरव्यू लें, एक बंदे को सामने बिठाएं जो उस कंपनी में करंटली वर्क कर रहा है, कि वो कैसे गया, क्या उसने पहले क्या एक्सपीरियंस था, कॉलेज में कैसे उसने परफॉर्म किया, कोडिंग पार्ट उसका कैसा था, और कोडिंग वो अभी भी कर रहा है नहीं कर रहा है, कंपनी में कैसा चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी पे कंपनी काम कराती है, और कौन सी कंपनी में टेक्नोलॉजीज हैं। ताकि वो जो जूनियर है वो पहले से ही अवेयर हो जाए और पहले से पता लग जाए कि कंपनीज में ये टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं और ये काम हमें कंपनी में जाके करना है, तो हम पहले से ही प्रिपेयर रहें। फॉर दिस आई हैव मेड, क्योंकि ये हेल्प होगी बेसिकली हमारे जो अभी कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, या इफ समवन वांट टू स्विच द जॉब, लाइक आपने स्विच करा टेक महिंद्रा में, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया। इफ समवन एल्स इज विलिंग टू स्विच द जॉब टू टेक महिंद्रा और एनी अदर कंपनी, सो ही और शी कैन गेट समथिंग फ्रॉम दिस, लाइक naukri.com से भी अप्लाई कर सकते हैं, लिंक्डइन से भी। होप नहीं खोनी चाहिए, यू कैन अप्लाई फ्रॉम मल्टीपल साइट्स, बट वन डे आपका रिजल्ट आएगा। लाइक यू हैव टू प्रिपेयर ऑन योर रेज्यूमे, लाइक रेज्यूमे को अपना बेटर करते रहें डे बाय डे, और कोई नई चीज़ लर्न करते रहें। यूट्यूब जैसा अभी आपने बताया कि यूट्यूब एक फ्री प्लेटफॉर्म है, यूडेमी है, काफ़ी फ्री प्लेटफॉर्म है, आप लर्न कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे दें और आपके सर पे कोई हथौड़ा लेके खड़ा हो। इट्स लाइक कि आपको कि आपने पैसे दिए तो आपको कोर्स करना पड़ेगा, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। इट्स लाइक कि अगर आपका मन है तो आप फ्री में भी वो कोर्सेज यूट्यूब या और कहीं से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 10,000 रुपये दिए मैंने यूडेसिटी पे और तभी मैं एक मतलब अच्छा एंड्रॉयड डेवलपर बन पाऊंगा, नहीं। आई कैन वर्क ऑन यूट्यूब ऑल्सो, काफ़ी जगह है। ऐसा नहीं कि 10,000 रुपये तो मेरे को कोर्स करना पड़ेगा, वो तो जबरदस्ती वाली बात हो जाएगी। मन भी मेरा नहीं था, मैंने बस पैसे दे दिए इसलिए मैंने कोर्स कंप्लीट करा, हाँ मेरे को सर्टिफिकेशन मिल गई, उसमें कोई फायदा नहीं है। लाइक अगर मैं अभी सर्च करूंगा किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो मेरे को काफ़ी वीडियोस दिख जाएंगी यूट्यूब पे, क्योंकि काफ़ी लोग अपने चैनल बना रहे हैं, अलग अलग डोमेन में बना रहे हैं और वो ग्रो भी कर रहे हैं। सो हमें भी थोड़ा देखना चाहिए कि अगर हम फ्री में कोई चीज़ लर्न कर पा रहे हैं तो डोंट वेस्ट जस्ट मनी ऑन समथिंग एल्स। यू आर सेटिस्फाइड विद माई आंसर? यस श्योर। Okay, thank you Prasad Bhaiya for being a part of Lockdown Runner. So viewers kindly hit like button and यस। subscribe to my